Hello everyone, this is lecture 4 and today we will study about the two theories of cognitive development and insight theory. Cognitive development theory was given by Jean Piaget, he was a French psychologist, and insight theory was given by Kohler. Okay, so these two will be studying today. Let us begin with the first one, Piaget's theory of cognitive development. Okay. See, Jean Piaget was a Swiss psychologist or biologist. Switzerland at that time consisted of parts of France also, so he was also known as French Swiss psychologist. The gist of the theory is that the gist is the conclusion that everyone is intelligent, but we use our intelligence differently. If you are in a classroom setting, there are 30 people sitting in a classroom. Every child is different. Yes, we know that due to individual differences, but this is also very crucial to remember that कि जो हर एक बच्चा होता है that uses he or she uses his or her intelligence differently. Somebody is good at craft, somebody good at dance, so these things was the main of cognitive development. This theory disagrees on a particular stage of achieving intelligence. ये theory disagree करती है किस चीज़ पर कि हमें intelligence achieve करने के लिए एक particular intellectual age पर पहुंचना चाहिए. पियाजे की जो क्लासिक मेजर्स थे वो था टू यूज मेंटल ऑपरेशंस इन हिज कंजर्वेशन टास्क. इन दिस टास्क चिल्ड्रन आर शोन two identical objects or sets of objects. Children are first shown the objects जो कि वन की प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, नंबर, साइज, वॉल्यूम एटसेट्रा में अगर कोई सेम है तो उन चीज़ों से डील करने का इसे बताता था वो स्टार्टिंग में. एंड देन ही वुड मूव ऑन टू हाउ दे वुड यूज देयर हाउ दे वुड use that models differently according to their own intelligence. Okay, so the theory that he gave was of cognitive development. The main aspects of those theories were, first were the schemas, and then they would move on to adaptation. Adaptation had three parts: assimilation, accommodation, and equilibrium. And then he gave the stages of cognitive development which are quite important from exam point of view. The first one was sensory motor stage, the next one was pre-operational stage, next one was concrete operational stage, and the last was formal operational stage. So let us discuss all these aspects of Piaget's theory in detail. Starts with schema. What are schemas? Schemas हमें बताए जाते हैं, they are mental representation of object. Whenever you first look upon an object, आप किसी भी चीज को देख रहे हो, the first image that pops up in your brain of that object without thinking, just by seeing, सिर्फ देखने से, अभी हमारा सोच की बात नहीं कर रहा है, वो जो हम अपनी आईज से देखते हैं उस चीज को, फर्स्ट इंप्रेशन को हम स्कीमा कहते हैं. स्कीमा, ऑलराइट. Mental images and packets of information. Mental image किसकी है? For example, there is a chair in front of me. Okay, there is a chair in front of me. I look at it and I think कि ये chair है. वो क्या होगा? Packet of information क्या आ गया मेरे पास? Chair. Image आ गई मेरे पास ये. The image representation is known as schema. देखते हैं patterns of behavior that adults and children use in dealing with objects of the world. That is the sun, this is the light, that is the building, this is the car. तो ये सब चीजें हमारी क्या होती है? schemas होते हैं. ये क्या होता है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड व्हेन ही नोज हाउ टू ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट विद इन रीच. एक छोटा बच्चा है, आप सबसे पहले उसका स्कीमा से फॉर्मेशन होता है. ही लुक्स अराउंड हिमसेल्फ, फिर वो देखता है कि मेरे पास एक पेन पड़ा है, वो उठाएगा, उसको टच करेगा, तो जो पहली इमेज उसके माइंड में फॉर्म होगी उस चीज को लेकर, दैट विल बी अ स्कीमा. न्यू इन्फॉर्मेशन होता है. स्कीमा क्या होता है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ऑल्सो न्यू इन्फॉर्मेशन. Alright, the next schemas can be classified as behavioral and cognitive. They are behavioral. Behavioral कब होते हैं? वो दो होते हैं. एक होते हैं हमारे behavior, हमारी physical aspect से related, एक होते हैं cognitive, हमारे mental aspect से related. They are behavioral when the action is that of solving problem or learning the concepts. Behavioral वो तब होते हैं जब हम problem solving में उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या learning करते हैं किसी new concept की. Schemas important are the building blocks of thinking. जो सोच के building blocks होते हैं, that are also known as schema. They also help in cognitive development since they are a part of cognitive development theory and they are blocks of thinking.
Okay. Piaget considered that organization is the process of forming schemas. किसी चीज को organize कर देना, A, B, C, ये चीज क्या होती है? पियाजे ने कहा था कि they are the process of forming schema, and schema are mental patterns or systems that describe the way people think about the world. The first impression of anything is known as schema. Okay, they are usually represented with mental images. Okay, next adaptation. अब adaptation के हमने 3 parts डिस्कस किए थे, assimilation, accommodation and equilibrium. What is the assimilation part? Assimilation होता क्या है? Occurs when a child uses a schema on a new object. अभी तक बच्चा एक घर में है, he is used to seeing his surroundings, but he also recognizes a chair. For example, एक कुर्सी है जो उसने अपने घर में बचपन से देखी है. He goes on to some other place, some relative's place or some new school or he sees a bench in a park. So what he will do? वो अकोमोडेट करेगा उस चीज को, असिमिलेट करेगा. असिमिलेशन किससे होती है? स्कीमा उसके माइंड में ऑलरेडी फॉर्म हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, उसमें क्या हो रहा है? न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है. फिर उसको ये चीज समझ आता है कि द चेयर दैट ही वाज सीइंग वाज मेंट फॉर सिटिंग. बैठने के लिए चेयर इस्तेमाल की जाती है, और चेयर की तरह ही काफ़ी सारी डिफरेंट बेंचेस, सोफाज, ये सारी चीज़ें चेयर को रिप्रेजेंट करती है. तो वो चीज़ क्या हो गई? जो ऑलरेडी था स्कीमा, उसमें जब न्यू इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाती है उसको हम असिमिलेशन कहते हैं. Assimilation is a process of incorporating a new object or event into existing schema. It involves new information as well as fitting the input in the existing schema. Existing schema में हम new information add कर रहे हैं, उसको हम assimilation कहते हैं. फिर आती है हमारे पास accommodation. Accommodation क्या है? It refers to the changing of an existing schema to fit new objects. Existing schema क्या चल रहा है हमारे पास? उसमें new object जो add हो जाता है उसको कहते हैं अकोमोडेशन. अकोमोडेट कर देना. इसमें तो न्यू इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, इसमें क्या है? न्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है, हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं. सो दैट इज अकोमोडेशन. ओके, नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम. सबसे पहले स्कीमा आता है, फिर उसके बाद सेकंड उस पे क्या आता है? सेकेंड उस पर आता है हमारे पास अडेप्टेशन, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, assimilation, accommodation and equilibrium. We are studying equilibrium right now, and then we will study the stages of cognitive development. Equilibrium नाम से क्या पता लगता है? It is a state of balance. जहां कहीं पर किसी भी दो चीज के होने का बैलेंस हो, उस चीज को हम एक लाइन में है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. देखो ये क्या होती है? ये फोर्स होती है जनरेटेड बाय असिमिलेशन ऑफ न्यू पैटर्न्स. असिमिलेशन फर्स्ट स्टेप होता है, और जब हम न्यू पैटर्न्स को इंक्लूड करते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं. डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो मेंटेनिंग बैलेंस इन दैट न्यू इन्फॉर्मेशन, कि ये मेरे घर की चेयर है, ये उसके घर की चेयर है. इट इज अचीव्ड लेटर ऑन इन लाइफ, नॉट quite in the beginning when the child is still new to schema and assimilation. Equilibrium तब अचीव होता है जब आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है? assimilate हो जाती है and उसके साथ साथ accommodate हो जाती है. he is used to. ठीक है, इक्विलिब्रियम इसके बाद एस्टैब्लिश किया जाता है. इक्विलिब्रियम इज द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर ऑर्डर इन्वॉल्विंग टेस्टिंग वंस अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट द रियल वर्ल्ड. ये क्या प्रोवाइड करता है? कि ये हमारे घर तक का अब तक का सामान था, नाउ ही इज एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड, एंड व्हेन दैट इंफॉर्मेशन हिट्स योर ब्रेन और स्ट्राइक्स योर ब्रेन, अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. When by the existing schema the new situation is not fully handled, then according to Piaget there is created a sense of disequilibrium. अगर वो बच्चा जैसे स्लो लर्नर है, उसको टाइम लगता है वो इंफॉर्मेशन माइंड में रखने में, तो वो क्या करता है?
डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो उसका स्कीमा है वो असिमिलेट तो हो गया लेकिन अकोमोडेट नहीं कर पा रहा न्यू इन्फॉर्मेशन को। फिर क्या हो जाता है? स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इन सच केस एन इंडिविजुअल ट्राइज टू रिड्यूस such imbalances. How? This he does by focusing his attention on the stimuli. Stimuli होता है any object that has caused the disequilibrium and to develop new schemas or adapt to the old ones until the equilibrium is restored. जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक उस चीज पर वो काम करता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर क्लासरूम सिनेरियोज। मूविंग ऑन टू Piaget's 4 development stages. So this we will be doing in detail as well. Sensory motor stage is from 0 to 2 years, pre-operational stage is from 2 to 7 years, concrete operational stage is from 7 to 11 years, and formal operational stage is from 12 to 15 years. These are the 4 stages given by Jean Piaget. Okay, let us move on to the sensory motor stage. This is the basic stage. इसमें क्या होता है? It contains age group of 0 to 2 years. There is absence of language. This is important. The child does not learn from language. यहाँ पर क्या होता है? Language absent होती है, ठीक है? There is also absence of object permanence. Object permanence कैसे? बच्चों को initially till only 8 months, 8 महीने तक बच्चों को पता नहीं होता what they are holding in their hand. They just need something to hold in their hand. तो वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। उनको पता नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है या कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। दे आर जस्ट न्यू टू द वर्ल्ड, दे आर अडेप्टिंग, देयर स्कीमास आर वर्किंग, देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड ग्रोइंग अप, ठीक है? And imitation is object is also prominent. Imitation of objects is also prominent. Imitation here does not mean mimicry. Imitation here means कि जो ऑब्जेक्ट को पकड़ना है या ऑब्जेक्ट को परसीव करना है, that is absent here. Okay. Okay. Next stage is the pre-operational stage. This is also known as toy age. Which age group, according to Piaget's theory of cognitive development, is also known as the toy age? This question has been asked in HP TET. This age group is 2 years to 7 years. इसमें क्या होता है? इस एज में बच्चा स्कूल जाता है तो उसको प्री स्कूल की एज भी कहा जाता है। 7 साल तक बच्चा स्कूल जाता है, गांव का बच्चा 5 साल के बाद जाता है, शहर का बच्चा 3 साल के बाद जाता है। तो ये स्कूल एज है, यहाँ पर स्कूल का होता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे टॉयज से खेलना सीखते हैं इस एज में, तो इसको टॉय एज भी कहा जाता है। इस एज में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द चाइल्ड नीड्स टू फील हिमसेल्फ करेक्ट। बच्चे को खुद को सही साबित करना होता है। 7 इयर्स के बच्चे को आप ले लो, अगर आप उसको बोलोगे नहीं मैं ऐसे मानता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ, ये मेरा टॉय ये यहीं रहता है, ये बच्चा क्या होता है? खुद को करेक्ट करने की कोशिश करता है इस चीज में। इन दिस एज द सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप कि अगर मैं सुपरमैन होता, दैट्स व्हाई चिल्ड्रन आर मोर इंक्लाइंड टू टॉयज, बिकॉज वो टॉयज की तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह रहना चाहते हैं। गर्ल्स प्रेफर टू बी मोर लाइक डॉल्स, ठीक है? ओके, दिस इज रिपीटेड। डेवलपमेंट ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? इसमें प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है। प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट इन्होंने भी दिया था एंड वी स्टडीड यस्टरडे कि लेव वाइगोत्स्की ने भी दिया था प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? कि खुद से बात करने लगता है, 2 टॉयज को खिला रहा है, वो उससे बात करे, उससे बात करे और खुद से भी बात कर रहा है वो, दैट इज प्राइवेट स्पीच। चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे नहीं। जब आप बड़े हो जाओगे आप ऐसा करोगे, नहीं आएगा उसको समझ। वाई? बिकॉज द माइंड इज नॉट डेवलप्ड एट दैट लेवल। ओके, दिस एज इज ओनली फ्रॉम 2 to 7, so the mind is quite tender to new concepts as well. The concept is conservation. Conservation का concept क्या? The concept of conservation is developed. कैसे? Recognition of the shape, length, breadth and height उसको लगती है चीजों की पता की, वो बोलता है ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है? Next is the concrete operational stage. Concrete operational stage इसकी 3rd stage थी। उसमें क्या कहा था इसने? उसमें ये कहा था इसने, वेट, हाँ, उसमें ये कहा था इसने, दिस कंटेन्स एज ग्रुप ऑफ 7 to 11। सबसे पहले आपको एज ग्रुप्स इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखने हैं, ठीक है? देयर इज अबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज एस्टैब्लिश। अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, 7 से 11 साल का बच्चा समझ सकता है आप उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ के बारे में, मॉरल्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, ही गेट्स अ ग्रास्प ऑफ एवरीथिंग। बट
देखो क्या होता है, एस्टैब्लिश हो जाती है रिवर्सिबिलिटी, ऑब्जेक्ट परमानेंस हुई थी, अब वो नहीं रहती है इस एज में। इस एज में बच्चों को होता है कि हाँ ठीक है ये पेन है, ये पेन है, ये पेन, परमानेंटली नहीं होते हैं वो कि यही पेन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, प्राइवेट स्पीच इसमें बंद हो जाती है। प्राइवेट स्पीच बच्चा बोलता नहीं है, अपने अंदर को सोचता रहता है। एंड देयरफॉर थिंकिंग्स बिकम लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, कि एक एक स्टेप, अच्छा अभी मैं स्कूल में हूँ, अभी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है, या अभी मुझे कुछ ये टास्क अकम्प्लिश करना है, इस टॉय से खेलूंगा आज मैं जाकर, तो लॉजिकल हो जाती है उनकी थिंकिंग और सिस्टमैटिक की, 1 by 1 चलती है। 1 to 3 को वो 3 to 1 कभी नहीं लिखेगा, सिस्टम से चलेगा बच्चा। और क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको टॉयज देते हो, उसको वो करेगा स्टफ टॉयज को अलग फ्रॉम हार्ड टॉयज, ठीक है। तो ये हो जाता है इसमें ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की, कौन सा सॉफ्ट टॉय है, कौन सा हार्ड टॉय है, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट विद इमेजिनेशन इज डिटर्मिन्ड, बच्चे की इमेजिनेशन पावर ऑन करने लग जाती है इस एज में, विच इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 12 to 15 ईयर्स तक। लास्ट, कंसेप्चुअलाइजेशन इज डेवलप्ड। कंसेप्ट्स इनके कैसे, बैलेंस के, कॉज एंड इफेक्ट के, असेसमेंट ऑफ ट्रूथ, कॉन्ट्रोडिक्शन एंड पैराडॉक्स, ये सारी चीजें जो होती है इस चीज में इवॉल्व हो जाती है बच्चों की, और वो हर एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। और इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो कंसेप्चुअलाइजेशन इज डेवलपमेंट एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थॉट, कि एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ज्यादा थॉट्स, बच्चा माइंड में अपने ज्यादा जीता है इस एज में। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्लासेस 7th to 10th यूजुअली। सो दिस, ये बच्चा आपकी क्लास में हमेशा ही होगा। डिडक्टिव लॉजिक्स लगते हैं इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ जाती है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है बच्चा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को समझने लग जाता है, रीजनिंग समझता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक्स की कौन सा लॉजिक कैसे अप्लाई हो रहा है वो चीजें इसमें समझने लगता है। दैट्स वाई यहाँ की पढ़ाई जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड वेराइटी वाली होती है, डायनेमिक पढ़ाई होती है। इसमें देखो हाइपोथेटिकल में इसमें क्या बताया है, रेवन पैराडॉक्स बताया। बचपन में बच्चा क्या करता है, associating of all the black things with raven, raven होता है कौआ, all raven are black, all non black things are non raven। तो बच्चा क्या करता है इसमें, इस चीज में जो बच्चा होगा वो कोई भी ब्लैक चीज है ना उसको बोलेगा ये कौए की तरह है, राइट वो ये नहीं बोलेगा कि जो ब्लैक चीज है वो कलर ब्लैक है उसका, नहीं, वो उसको एसोसिएट करता है, उसको बोलते हैं रेवन पैराडॉक्स, जो इस एज में मिस हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज द मेन जिस्ट ऑफ द थियोरी। सबसे पहले हमें स्कीमा पता लगता है, उसके बाद स्कीमे की असिमिलेशन होती है, हाउ, बाय एडिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट this is the other way around actually, accommodation comes first, this comes here and this comes here। इसमें क्या होता है, mental images, mental images, इसमें क्या हो जाता है, उसके साथ न्यू इन्फो ऐड हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, न्यू इन्फो के साथ न्यू ऑब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है, और जब बच्चा इसमें इसमें और इसमें बैलेंस ढूंढ लेता है तो हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है। इज दिस क्लियर, आई होप सो, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियरी, इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग। ये किसने दी थी, वोल्फगैंग कोहलर ने दी थी कर्क कॉफका के साथ। टू साइकोलॉजिस्ट जिस्टाल्टिस थे, Wolfgang Kohler and Kirk Kafka in 1920 gave this theory, proposed this theory, and it is based on, किस पर based है ये, configuration pattern as a whole, WHOLE, पूरा, वो चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है। फोकस क्या था इस थियोरी का, the whole is more important than parts। जो अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर है, ये कह रहा है कि चार पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो अलग अलग इतने इफेक्टिव नहीं है जितने वो पूरे ब्लॉक में है जब आप उनको ज्वाइन कर लो, ओके। सो दिस वाज द मेन focus of this insight theory of learning, and it laid emphasis on integrated curriculum, कि curriculum एक एक चीज पर बेस नहीं होना चाहिए, curriculum as a whole होना चाहिए। how, integrated होना चाहिए, हर बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर स्पेशल बच्चे आने चाहिए उसमें, गिफ्टेड आने चाहिए, स्लो लर्नर आने चाहिए, ओके।
एंड स्पेशली एबल्ड बच्चे आने चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि गोल, सबसे पहले क्या होता है, हम गोल सेट करते हैं, फिर अटेनमेंट ऑफ गोल, अटेनमेंट करते हैं उसकी, फिर हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से पूरा करते हैं, और फिर फोकस करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे, ताकि हम वो गोल अचीव कर पाए। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट एज ये थियोरी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक चिंपैंजी पर हुआ था जिसका नाम सुल्तान था। दिस इज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। सुल्तान ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, कॉलर प्लेस्ड बनानास आउटसाइड द सुल्तान्स केज एंड 2 बैम्बू स्टिक्स इनसाइड। पहले क्या किया, एक सुल्तान था, चिंपैंजी था, उसको एक केज में बंद कर दिया उसने। उस केज में 2 स्टिक्स थी और केज के बाहर को बनाना था, ठीक है। अब उसने क्या सोचा कि जब तक इसको बनानास दिख रहे हैं, ही विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि मुझे ये चीज खानी है, मुझे ये चाहिए। तो उसने क्या किया, पहले वो स्टिक ली उसने, ही लुक्ड एट द स्टिक एंड ही जस्ट ब्रश्ड इट अराउंड कि बनानास उसके पास आ जाए, बट ही वॉज नॉट एबल टू रीच। उसने क्या किया, फिर दूसरी स्ट्रिंग ली और दूसरी स्टिक ली और उसको टाइट एक दूसरे के साथ बांध लिया। फिर उसने दोनों स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन बनानास को अपने पास खींचकर उनको खा लिया। तो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया था, ही वॉज इन अ डार्क रूम और ऊपर से उसने बनानास को हैंग कर दिया था कोलर ने। वहां पर बॉक्सेस थे ज्यादा। तो उसने क्या बोला था कि जो सुल्तान को क्या टास्क था कि वो बनानास उसने खाने हैं। ही वॉज अ चिंपैंजी, ही वॉज नॉट ट्रेन्ड, ही वॉज जस्ट की इनसाइट, मतलब अंदर से जो हमारी नॉलेज आती है, थिंकिंग आती है, ज्ञान आता है, उस चीज को हम इनसाइट कहते हैं। सो हाउ वॉज दैट अचीव्ड, इट वॉज अचीव्ड बाय सुल्तान। उसने क्या करा था, बॉक्सेस को पहले एक बॉक्स पे वो चढ़ा, फिर वो बनानास तक नहीं पहुंच पाया, दूसरे बॉक्स को उसने फर्स्ट बॉक्स के ऊपर लगाया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ वो बनानास को अचीव कर पाया था। सो व्हाट हिज मेन मोटिव, उसका मेन मोटिव कोलर का ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टिक है, स्टिक इज क्वाइट थिक, अगर एक स्टिक है, एक स्टिक से वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब दूसरी स्टिक उसने जोड़ दी तो वो कर पाया। तो जो ये पार्ट था और जो ये पार्ट था, ये अलग अलग थे, तो उसने क्या कहा था कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। वैसा ही केस बॉक्सेस में था, एक बॉक्स के ऊपर अगर वो दूसरा बॉक्स नहीं लगाता, वो चीज इनसाइट नहीं होना था उसको। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, सुल्तान्स बिहेवियर हेल्प प्रूव दैट एनिमल्स कैन लर्न बियॉन्ड सिंपल ट्रायल एंड एरर एंड दैट मेनी स्पीशीज कैन डेमोन्स्ट्रेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। many species can demonstrate the deeper understanding of a problem, so why cannot humans? तो बच्चों को इसी तरीके से क्लास में सिखाया भी जाता है कि आप चीज को एज अ होल देखो। कभी भी हम एग्जाम में एक बच्चे को क्वेश्चन देते हैं, हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो पूरा पेपर याद करके आए। वो जो चीज याद करके आएगा एज अ होल, वो उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो लिखता ही जाएगा। देयरफॉर होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट्स। ओके, स्टेप्स क्या थे इनसाइट लर्निंग के, सबसे पहले तो ये देखो, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि हाउ एम आई एबल टू रीच टू द बनानास, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कि ये मुझसे दूर है, बट मैं क्या करूंगा, इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज, मतलब आइडियाज जनरेट होंगे उसके दिमाग में खुद ब खुद, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज होंगे उसको, इनसाइट इनसाइट होता है अंतर ज्ञान, जो होता है अंतर ज्ञान आता है उसको, क्या कि मैं बॉक्सेस को अगर एक दूसरे के ऊपर लगाऊंगा तो शायद मैं अचीव कर पाऊं। ओके, देन इज ट्रायल ऑफ मोड ऑफ रिस्पॉन्स, पहले उसने एक के साथ किया, फिर उसने दूसरे के साथ किया, फिर उसने तीसरे के साथ किया, एट द एंड अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर लिया। और इस पर अटेंशन होती है, सस्टेन्ड अटेंशन, बच्चा ध्यान से कर रहा होता है कि अगर एक ब्लॉक की, जैसे ब्लॉक्स वाली गेम दे दो आप बच्चे को, ट्राइंगल के साथ स्क्वायर ज्वाइन करना है, तो वो उसको ट्राइंगल को हल्का सा टिल्ट करके उसको फिर ज्वाइन करेगा, वो अगर वो सीधा रखेगा दे वोंट बी एबल टू बेंड इन टुगेदर। ओके, नेक्स्ट इज द इनसाइट डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, बच्चे की इनसाइट डेवलपमेंट होती है, अंदर से उसको आइडियाज अपने आप ही प्रॉम्प्ट होते हैं। स्टेडी रेपिटेशन ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर, उसका बिहेवियर अडेप्ट होता है और उसकी रेपिटेशन भी होती है, तो इससे क्या होता है, क्लासरूम लर्निंग उसकी अफेक्ट करती है, इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एबिलिटी, बच्चे को पता लग जाता है कि वो किस चीज के काबिल है, कॉम्प्रिहेंस हो जाती है।
इसके लॉज थे कुछ, देखो, लॉज ऑफ इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब सेम चीजें, सिमिलर आइटम्स और थिंग्स टेंड टू फॉर्म ग्रुप्स इन परसेप्शन। अगर हम सिमिलर आइटम्स या ग्रुप्स को फॉर्म इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाता है, ग्रुप फॉर्मेशन हो जाती है परसेप्शन के वे पे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर, कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाता है। वेल स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंसेस आर लर्न इजीली देन अनस्ट्रक्चर्ड वन। अगर बच्चे को बोले चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 10 याद करो, अगर वो रिलेट करेगा तो वो ठीक है। जैसे चैप्टर 1 है एनिमल्स के बारे में, चैप्टर 10 है ह्यूमंस के बारे में, तो ही कैन रिलेट। बट अगर आप कुछ और दे रहे हो, एक में एयर पोल्यूशन है, एक में आप दे रहे हो हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो फिर वो चीजें रिलेट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा वो। देन इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, थिंग्स क्लोज टू वन अनदर फॉर्म्स अ पैटर्न और कन्फिगरेशन। जो थिंग्स एक जैसी दिखती है वो क्या हो जाती है, पैटर्न फॉर्म करती है। Next is law of continuity. Objects having continuity helps in meaningful organization. जैसे कि एक काम कर रहे हो आप, उसी से मैचिंग दूसरा काम है, उसी से मैचिंग तीसरा काम है, तीनों के लिए आपने अलग पर्सनल रखे हैं, तो क्या हो जाता है, ये एक मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मीन अ ऑफिस और समथिंग, इट मीन्स कि ऑर्गेनाइज कर देना किसी चीज को, ओके। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ क्लोजर, कि क्लोजर क्या होता है, कि लास्ट में जो बंदे को मिलता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। स्टेट्स दैट व्हेन द परसेप्शन ऑफ सिचुएशन इज इनकम्प्लीट द इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि अगर वो परसीव ही नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वो मात खा जाएगा। Next is law of common region. This law states that items within a boundary are perceived as a group, जैसे कि कंट्री का ले लो एक, and assumed to share common characteristics. एक कंट्री, स्टेट, सिटी, उनको बाउंड्री के अंदर रखा है तो वो सेम कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, ठीक है। So these were some laws associated with the insight theory. Let us understand the educational implications. Educational implications जो इस theory के थे। सबसे पहला क्या था, इंटीग्रेटेड करिकुलम। ये किस लिए लाई गई थी, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश करवा रहे हैं तो आप स्टार्ट टेंस से नहीं कर सकते हो। वाई, क्योंकि टेंसेस किसका बताते हैं, टाइम का बताते हैं, होना या ना होना। उसके लिए तो पहले आपको प्रेपोजिशंस पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, नाउन पढ़ने पड़ेंगे, तो ये चीजें उससे पहले हो जानी चाहिए। दैट इज वाई इंटीग्रेटेड करिकुलम, की करिकुलम एक जैसा तो हो, ऑन द होल हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, इंटर रिलेटेड भी होना चाहिए। प्रॉब्लम एज अ होल, चाइल्ड एज अ होल। किसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, नहीं, आप एज अ होल देखो उसको, जो इनसाइट आ रहे हैं वो आप दो, क्यों, बिकॉज चाइल्ड ऑल्सो थिंक्स एज अ होल। चाइल्ड विल नॉट थिंक कि चलो स्टेप 1 पूरा करते हैं, इसका स्टेप 2 करते हैं। दे ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉब्लम एज अ होल, सो चाइल्ड मस्ट ऑल्सो बी थॉट एज होल। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, दैट इज गुड, गुड मोटिवेशन देता है ये बच्चों को। वाई, बिकॉज दे आर डेवलपिंग देयर ओन आइडियाज, देयर ओन इंटरेस्ट, उनके माइंड में चीजें डेवलप हो रही है, उन्हें खुद इनसाइट्स आ रही है, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का भी इंपॉर्टेंस पता लगती है इसमें, कि हम किस अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैसिलिटीज, मेंटल फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव होगी, ये इंप्रूव होती है व्हेन वी थिंक। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारा दिमाग कहाँ रह जाएगा, जीरो का जीरो रह जाएगा, ठीक है। सो थिंकिंग इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अचीव अ गुड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैसिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, कि वो खुद ही सोचेगा इस चीज को एज अ होल। यूज्ड इन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या करना है, एज अ होल बतानी है प्रॉब्लम, कि बेटा ऐसा है, ये ऐसे, ये प्लांट किंगडम में आते हैं, ये एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये खत्म करना है, फिर ये खत्म करना है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में क्या हो जाता है, उसको खुद इंसाइट आती है कि एनिमल्स को देखो, आप जू ले जाओ उसको इंसाइट्स आएगी कि जो मैम ने पढ़ाया था वो ऐसा ऐसा था, ठीक है। यूजफुल इन साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन तब तक नहीं होते जब तक आपके माइंड में इंसाइट्स ना आए। जब तक आपके माइंड में यूनिक इंसाइट्स नहीं आएंगे तब तक आप दूसरों की ही थियरीज रिपीट करते रहोगे। Last is emphasis on the attainment of the goal. Insight theory focuses on the attainment of the goal, so it is quite important
from exam point of view also. Okay, ठीक है? So this concludes our lecture. Today we studied two theories. The first one was Piaget's theory of cognitive development, and the second one was insight theory by Wolfgang Kohler. Thank you.